As you all know that your summer vacation is already over. Now today I am telling you a new lesson, and that is a story, Ishwaran the Storyteller. It's a very good story. I hope you will like it. In this lesson there are two characters, Mahendra and Ishwaran. Now let us see what is in the story. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by his name. He was junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors. Mahendra's job children was to keep an eye on the activities at the work site. He kept on moving from place to place, and then, as it was ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming somewhere. Mahendra was a bachelor. His needs were very simple, and he was able to adjust himself to all kind of odd situations. He had only one asset, and that was his cook, Ishwaran. He was a very good cook. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. Mahendra, the Ishwaran used to cook for Mahendra, washed his clothes, chatted away with his master at night. And one thing was very special in Ishwaran, he would weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. He made very good dishes for him time to time and made his Mahendra's life comfortable. Mahendra would be up early in the morning as it was his habit, children, वो जल्दी उठ जाता था, and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwan would tidy up the shed, wash the clothes and do all the house activities in the meantime. When it was lunchtime, after eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative, कहानियाँ पढ़ता था और उसके वो जो इमेजनरी चीज़ें थी या वर्णन थे उनको अपने दिमाग में रख लेता था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author. जब वो अपनी स्टोरी सुनाता था तो उसमें तमिल की चीज़ों का असर कुछ ज़्यादा ही दिखाई देता था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending him into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the, ये कहने के बजाय कि उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा हाईवे पर, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture, the road was deserted, सड़क सूनी थी, and I was all alone, और मैं अकेला था. Suddenly I spotted something, अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया, that looked like an enormous bushy beast, कोई बालों वाला जंगली जानवर मुझे वहाँ पर रोड पर दिखाई दिया. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. मैं दूर था, मैं पास जाके देखा तो वो कोई जंगली जानवर नहीं था बल्कि गिरा हुआ एक पेड़ था. उसकी टहनियाँ सूखी हुई थी और चारों तरफ फैली हुई थी. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tale uncritically. महेंद्र जो था वो उसकी कहानियों को अपने चेयर पे बैठ के आराम से सुनता रहता था और कुछ भी नहीं कहता था. One day, Ishwaran told the story of an elephant to Mahendra and said, one day a tusker escaped from the timber yard. एक दिन एक हाथी टिम्बर के यार्ड से भाग गया and began to roam about और झाड़ियों को कुचलता और चारों तरफ घूमता रहा. You know sir how an elephant behaves. तुम्हें पता है जब हाथी पागल हो जाता है कैसे बिहेव करता है. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor. वो अपनी कहानी सुनाता था. ईश्वर इतना ज़्यादा खो जाता था कि वो फर्श पे जंप मारने लगता था, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट. अचानक वो जंगली हाथी, पागल हाथी भागता भागता टाउन के बाहरी एरिया पे आ गया. ब्रेकिंग द फेंसेस, उसने सारी बाड़ तोड़ दी माचिस से जो बनी हुई थी, जैसे माचिस को कोई तोड़ देता है. ही वुड कंटिन्यू. इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स. उसने फलों के पूरे ठेले गिरा दिए, घड़े तोड़ दिए, कपड़े फैला दिए. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. लोग इधर उधर तितर बितर भागने लगे उसके डर के मारे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड. अचानक वो बच्चों के स्कूल में घुस गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. उसने दीवार तोड़ी ईंट की. ऑल द बॉयज़ रैन. बच्चे क्लासरूम में भागे, दरवाजे बंद कर लिए. द बीस्ट ग्रंटेड. वो जो जंगली हाथी था वो जोर से बोला एंड वॉन्डर्ड अबाउट. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट. उसने गिरा दिया. टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट. किकिंग, फ्लैटनिंग द डैम. ड्रम केप्ट फॉर वाटर. पानी का भरा हुआ ड्रम गिराया. अपरोटिंग द श्रब्स. मीन वाइल ऑल द टीचर्स आर क्लाइम्ड अप. बीच टीचर जो थे वो टेरेस स्कूल की छत पे चढ़ गए, टेरेस स्कूल बिल्डिंग की, और उसको वहाँ से देखने लगे.
कोई भी जो ऐसा नहीं था जो ग्राउंड पर हो। सारी गलियां खाली हो गई और सारा शहर खाली हो गया। उस समय ईश्वरन टोल्ड टू महेंद्रन दैट ही वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। मैं छत से सब कुछ देख रहा था और मैं 9वीं क्लास में जूनियर क्लास में था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी। अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने एक बड़ी सी डंडी उठाई फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर के हाथ से मैंने एक छड़ी ली और सीढ़ियों से नीचे तेजी में खुले में भागा। द एलिफेंट ग्रंटेड। एलिफेंट फिर जोर से बोला एंड मिनेंसली स्वंग ब्रांच। उसने एक टहनी तोड़ी। इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक और अपनी सूंड में फंसा ली। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट। उसने पैर जोर से ज़मीन पे मारा और उससे बहुत सारी मिट्टी उड़ी। इट लुक फ्राइटनिंग। सारा नज़ारा डरावना हो गया। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट। पर मैं जल्दी से हाथी की तरफ भागा छड़ी लेके। पीपल वर वॉचिंग। लोग मुझे देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी। हाथी ने अपनी लाल आंखों से मुझे देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स। मेरी तरफ लपका। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक। उसने अपनी सूंड उठाई और जोर से बिगुल बजाया। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड। मैं आगे बढ़ा अपनी पूरी शक्ति के साथ और छड़ी उसके पैर पे मारी। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट। कुछ देर तो वो सकते में आ गया हाथी। देन इट शिवर्ड। वो कांपा सिर से लेकर पैर तक और वहीं पर ढेर हो गया, वहीं पर गिर गया, कोलैप्स हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव दिस। यहाँ उसने अपनी कहानी अधूरी छोड़ दी और एंड नहीं बताया। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, जो बहुत ध्यान से सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। वो सोच में पड़ गया। व्हेन ही रिटर्न ईश्वरन डिड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी। जब ईश्वरन वापस आया तो उसने कहानी दोबारा से वहीं से नहीं शुरू की। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम। महेंद्र ने उसे याद कराया दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि योर एंड इज़ नाउ स्टिल पेंडिंग। देन ही सेड दैट वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड टू रिवाइव द एनिमल। उसको जिंदा करने के लिए जानवरों का डॉक्टर बुलाया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे। 2 दिन बाद महावत उसे जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? तुमने ऐसा कैसे किया? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? तुमने उसे नीचे कैसे गिराया? इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जैपनीज़ आर्ट। ये मैंने जापानीज़ कला से किया। आई थिंक सर कराटे और जुजुत्सु इट इज़ सो कॉल्ड। आई रेड इट समवेयर। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। यानी उसमें ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। थोड़े दिन बीते थे। ईश्वरन ने एक और कहानी महेंद्रन को सुनाई। वन मॉर्निंग में महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेक। एक दिन महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था। ईश्वरन ने कहा कैन आई मेक समथिंग स्पेशल? मैं तुम्हारे लिए आज कुछ खाने को सर अच्छा बनाऊँ? आफ्टर ऑल टुडे इट्स एन ऑस्पिशियस डे। आज एक बहुत पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर। आज के दिन हम अपने पूर्वजों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट। उस रात महेंद्र ने बहुत स्वादिष्ट डिनर खाया एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल। और उसकी खाना बनाने के ऊपर ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट दिया महेंद्र ने। ही सीम्ड वेरी प्लीज। और ईश्वरन बहुत खुश हो गया। यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। सर आप जानते हैं कि ये जो एरिया है ये यहाँ पर कभी शमशान था। महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्रेजेंट रेवरी। महेंद्र आश्चर्य में पड़ गया एंड ड्रिफ्टेड अवे इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जब हम यहाँ आए थे पहले दिन कि मानव खोपड़ी यहाँ पड़ी हुई थी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स। आज भी मैं बहुत सारी खोपड़ियाँ यहाँ देखता हूँ। एंड बोन। ईश्वरन कंटिन्यूड। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. Now Ishwaran told Mahendra that he saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. Ishwaran said that I am a brave fellow. I am not afraid of ghosts. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It's an ugly creature with matted hair and a shriveled face. उसने कहा पर मैं रोज़ रात को एक भूत देखता हूँ, अगली क्रिएचर जिसके बाल बिखरे हुए एंड हैज़ अ वेरी डर्टी फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ fetus इन इट्स आर्म। और उसका लगता है दैट द लेडी इज़ होल्डिंग अ स्मॉल चाइल्ड इन इट्स आर्म। महेंद्र शिवर्ड। महेंद्र कांप गया एंड इंटरप्टेड शार्पली। यू आर क्रेजी ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स। इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। भूत कुछ नहीं होता है, तुम्हारी कल्पना है। महेंद्र ने ईश्वरन से कहा गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज। अपना डाइजेस्टिव चेक कराओ, सिर भी चेक कराओ, तुम नॉनसेंस बातें करते हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड एट द नाइट। महेंद्र ने कमरा छोड़ा और जाके सो गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सेल्फ फॉर ए कपल डेज। और सोचा कि ईश्वरन थोड़े दिन चुप रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन फिर ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक। देखा कि ईश्वरन जो था अगले दिन फिर वैसे ही खुश और वैसी बातूनी बना रहा।
From that day, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन के बाद महेंद्र जो था उसकी बातें सुनने से पहले ही बिस्तर पे चला जाता और बहुत बेचैन रहता. Every night he peered, हर दिन वो बाहर अंधेरे में झाँकता. थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, खिड़की के बाहर देखता. ट्राइंग टू मेक श्योर, देखता कि बाहर कोई काली छाया तो नहीं. बट ही वुड ओनली सी अ डार्कनेस, उसे अंधेरा ही दिखाई देता और तारे दिखाई देते. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स. बाहर वो जो सफ़ेदी चांदनी रात फैली रहती है, चांदनी रात में वो महेंद्र को देखनी बड़ी अच्छी लगती है. बट आफ्टर हेयरिंग ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद वो जो फीमेल घोस्ट है, वो जो महिला भूत है, ही अवॉइडेड, उसने उस दिन के बाद खिड़की से बाहर देखना ही छोड़ दिया. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम स्लीप बाय लो. एक दिन महेंद्र को खिड़की से बहुत आवाज़ आई. बट द साउंड वॉज टू गटल फॉर अ कैट. ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, बट द आवाज़ बढ़ती रही खिड़की के बाहर. महेंद्र अपनी टेम्पटेशन को छुपा नहीं पाया. लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो, खिड़की के आगे तक आया महेंद्र. बाहर देखा चांदनी रात में. देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क, वहाँ बाहर बादल ही काला बादल आया हुआ था. महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, काला काला बादल सा उसे दिखाई दिया. महेंद्र पसीने में भीग गया और अपने पिलो के ऊपर जाके गिरा, हाँफने लगा. एंड ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस, और इस कट्टर अनुभव से वो धीरे धीरे बाहर आया. ही बिगन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही पूछने लगा. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये शायद मेरा भ्रम है. सम ट्रिक दैट इज सबकॉन्शियस माइंडेड प्लेड ऑन हिम, शायद मेरे दिमाग में कुछ बात थी वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. बाय दिस टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, अगले दिन वो सुबह उठा, नहाया, ब्रेकफास्ट लिया. द हॉरर ऑफ द, पिछली रात का जो डर था वो उसकी याद से धुंधला पड़ चुका था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन उसे दरवाजे में मिला. विथ हिज लंच पैकेट, उसका लंच पैकेट उसे दिया और उसका बैग दिया. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे महेंद्र कमरे से बाहर जाने लगा, ईश्वरन बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस. सर आपको याद है मैं आपको बता रहा था कि एक महिला भूत आती है अपने हाथ में बच्चे को पकड़े हुए, नवजात बच्चे को. यू वर सो एंग्री, तुम मेरे पे नाराज़ हुए थे कि तुम गलत चीज़ें इमेजिन करते रहते हो. वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, पर सर आपने भी तो रात किसी को देखा. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, मैं भी किसी के रोने की आवाज़ सुन के बाहर आया था. दैट वॉज, जो तुम्हारे कमरे से आ रही थी. अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, एक ठंडी लहर घबराहट की महेंद्र की रीढ़ की हड्डी से नीचे को बहने लगी. महेंद्र बिकम वेरी नर्वस, वो डर गया. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा होने की वेट नहीं की. ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, और जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ भागा. एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. उसने एक पेपर पे कुछ लिखा और उस पेपर को उसने आगे ऑफिस में दिया और वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा. दिस इज़ द स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, that how good he was to create imaginary stories. So you must have learned this from this story. This story has been written by R.K. Lakshman. Thank you children, thank you very much. प्ले कर रहा था पहले. हाँ